Start. Yeah, good afternoon, everyone. It's nice to have all of you in this lecture of social demography. And today we will deal with this chapter 2, that is scope, subject matter, and importance of social demography. So, as far as this demography, social demography is concerned, we had gone through this last previous lecture, rather chapter, incomplete chapter, and have a detailed discussion about this introduction of demography as well as social demography, its origin, its definitions, everything. Now we are proceeding its second part of it, that is introductory itself. And the second part is one of the most important aspect of any discipline, any subject, that is scope, subject matter, and importance. It's paramount significance to mention over here that any subject which we are studying in any discipline, that is must have the scope and subject matter, because it curtails, it delimits what we have to study about that very subject, and why we are studying that subject, that can be covered under this subtopic, rather I would say, that is importance of that very subject. So dealing with these three, the most important aspect of social demography, we will start with scope of social demography, then we'll shift to the subject matter, and then later on the last phase of this chapter we will shift to this importance of social demography. So first of all, I want to recap what we did so far. And just to recap what we did so far, I just want to put before you all that demography is a study of size, territory distribution, as well as composition of population, changes therein, and component of such changes such as quantitative as well as qualitative of human population, that is demography. So primarily जो हमारा फोकस रहेगा, सॉरी आई वाज टोटली रिमेन इन इंग्लिश, मुझे लगा कि पता नहीं भूल जाता हूं, आपने याद दिला देना है, ये थोड़ा हिंदी में भी करना है. सो प्राइमरली फोकसिंग ऑन दिस सोशल डेमोग्राफी, उसमें हम मुख्य जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, मुख्य जो हमारा फोकस होता है, दैट इज ऑन लिविंग पॉपुलेशन of any region which is available on this planet, Mother Earth. तो इसमें जो है अति महत्वपूर्ण जो 3 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस हैं, जिसको कि हम फर्टिलिटी बोलते हैं, मोर्टिलिटी बोलते हैं और माइग्रेशन बोलते हैं, ये तीनों के तीनों का अध्ययन इसमें डेमोग्राफी में किया जाता है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं. और इसमें बीइंग ए सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, because it is this demography, social demography is affecting almost every aspect of human life, because with the rise in population it creates many problems, because there is a concept of optimum population का जो concept है, उसमें एक अपेक्षित क्षेत्र की, जैसे पहले हमने बात की थी, अपेक्षित घर की आबादी कितनी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, जिसका कि जो करता है परिवार का, वो सही से उसका पालन पोषण कर सके. ये बात हमने स्टार्टिंग में भी आपसे कही थी और अभी भी हम बात कर रहे हैं. तो उसी तरह से सेम इज एप्लीकेबल टू द मदर प्लैनेट, और उसमें सेम में देखने की अगर हम कोशिश करें तो इस अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, रादर कितने लोगों को ये पाल सकती है मदर अर्थ, वो हम यहाँ देखने की कोशिश इसी में रहेगी, और उसी के विदिन हमारा स्कोप भी जाएगा. तो हम बहुत ही कम शब्दों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेमोग्राफी में जो मुख्य कंसर्न हमारा रहेगा, दैट विल बी बिटवीन सोशल एंड डेमोग्राफिक फिनोमेनाज ओनली. सामाजिक और जननांगीय जो घर पर घटनाएं हैं उसके साथ हमारा इसका संबंध रहेगा. और उसमें एक और शब्द 19-20वीं शताब्दी में इसके लिए क्या यूज होता रहा,
जिसको हम डेमोलॉजी बोलते हैं। डेमोलॉजी, DEMOLOGY। डेमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? लॉजी आपको पता ही है, लॉगस वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है साइंस, नॉलेज। और वो नॉलेज कौन सा? साइंटिफिक नॉलेज। तो डेमो मीन पीपल, लोगों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान, रादर साइंटिफिक नॉलेज, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डेमोलॉजी, DEMOLOGY। तो आगे चलने से पहले एक शब्द, रादर डेमोग्राफी में जाने से पहले डेमोलॉजी थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा आप लोगों के फायदे के लिए। सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ मेजर, दैट्स व्हाई इट मे बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण हो सकता है। डेमोलॉजी, जैसे पहले ही मैंने बात कर ली, इट्स कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, वन इज डेमो, सेकंड वन इज लॉजी। डेमो, as you know very well, it derived from Greek word demo, ग्रीक वर्ड से निकला हुआ शब्द है, और ग्रीक वर्ड है डेमोस, DEMOS, जैसे हमने डेमोग्राफी में देखा था। अब डेमोग्राफी में भी डेमो है और वहां ग्राफी है। ग्राफी मीन हमें ग्राफ, उसका स्केच हमने उसको लेना है, रादर उसकी जो डेमोग्राफी प्रोसेसेस हैं सिर्फ उसी पे हमने ध्यान देना है। Whereas here the second word is logy, LOGY। लॉजी जैसे आपको पहले पता है, लॉजी जो है वो जैसे सोशियोलॉजी में है, ग्रीक वर्ड लॉगस से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्टडी। तो जो दोनों शब्द हैं, डेमो भी और लॉजी भी, इसका मतलब क्या हो गया कि हम पहले इनके बारे में जानते हैं। और इसका अर्थ जो हो जाएगा कि लॉजिया से निकला हुआ शब्द, लैटिन वर्ड लॉजिया है इसका, और उसमें जो शब्द इसका डेमोलॉजी का सिंपल शब्द में हो जाएगा, इट इज साइंस ऑफ पीपल। यह सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी था, यहाँ इट्स साइंस ऑफ पीपल। अब लोग और समाज, लोग और व्यक्ति, सब में फर्क यहाँ आपको आने लग पड़ा होगा। और जब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि डेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। डेमोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, नंबर वन, उनकी एक्टिविटीज और उनका बिहेवियर कैसा होगा, उसके बारे में डेमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जबकि अब यहां फर्क करने लगा हूं, नोट कर लेना सभी, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना। डेमोलॉजी क्या होगा? डेमोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्टिविटीज एंड बिहेवियर, तीन चीजों का अध्ययन है ये। और जबकि डेमोग्राफी जो होता है, डेमोग्राफी जो होगा वो किसका? इट लिमिट्स इट ऑब्जेक्ट टू स्टडी ओनली मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेसेस, measurement of population processes only. I'm repeating, it's a demography, it is a study of measurement of population processes only. I'm repeating again, डेमोलॉजी जो था उसमें क्या था? ह्यूमन पॉपुलेशन भी थी उसमें, एक्टिविटीज एंड बिहेवियर, तीनों चीजें आएंगी। Whereas in demography only measurement of population processes, पॉपुलेशन को प्रोसेस करने वाली जो प्रोसेसेस हैं पॉपुलेशन की, उन्हीं का अध्ययन सिर्फ डेमोग्राफी में किया जाता है। आप लोगों को पता है डेमोग्राफी प्रोसेसेस क्या क्या है? एक फर्टिलिटी, एक मोर्टिलिटी और माइग्रेशन। इससे जुड़े हुए मुद्दों का अध्ययन उसमें किया जाएगा। There should be clear cut distinction for you all. And whereas this subject is concerned social demography, अब दोनों को मिलके सोशल भी यहाँ आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? सोशल डेमोग्राफी एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन, अब यहाँ क्या करेगा? इट एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन, कहां कहां होगा? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन, influencing population. I'm repeating, social demography is a study of, analyze relationship between economic, social, cultural, biological processes influencing population. I'm repeating again, influencing population. Repeating again, influencing population. कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर, उस रिलेशनशिप को स्टडी करना है किस किस के बीच में? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और बायोलॉजिकल। ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं और पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करते हैं, एंड मैनी मोर। इट्स ए न्यू अप्रोच। इसमें क्या क्या होता है? नंबर वन, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी।
सोशल डेमोग्राफी इज ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी, विवेचनात्मक अध्ययन है, डिटेल में अध्ययन है। किसका भला? डिटेल में अध्ययन होगा। इनोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, इनोमरेशन मैंने गणना करना, जनसंख्या की गणना करना, ये इसका सोशल डेमोग्राफी का काम है। नंबर 2, स्टडी पॉपुलेशन फ्रॉम इंपिरिकल, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। 3 पर्सपेक्टिव है। स्टडी पॉपुलेशन फ्रॉम इंपिरिकल, अनुभव सिद्ध, स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी, और मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। तीनों पर्सपेक्टिव से जनसंख्या का अध्ययन करना। और नंबर 3 है, इट स्टडी साइज, कंपोजिशन, distribution of population. Size is the population at a place at different point of time. Composition mean age, sex, marital status, education, religion wise, caste wise, health wise, community wise, religious group wise. Anything which compose a population that is being studied under the social demography. I do hope I made everyone clear कि तीनों के तीनों डेमोलॉजी, डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी जो है वो तीनों में क्या फर्क है, मुझे लगता है कि मैंने आपको तीनों को क्लियर कर दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप छोटा सा ग्रुप है, आप सामने भी हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, प्रकट हो जाइए सभी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोबारा फिर रिपीट करूं या? क्योंकि इसी के बेस पे सारा आगे बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। दोबारा बोलूं? नो सर। एक बार फिर? ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलने को तैयार हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डेमोलॉजी, डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी, 3 अति महत्वपूर्ण ये विषय हैं जिनको अलग अलग से आपके सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। इसी के आधार पे, क्योंकि आपका स्कोप भी बनेगा और सब्जेक्ट मैटर भी इसी के आधार पे कंस्ट्रक्ट होगा। जो भी हम बात करेंगे आगे उसके लिए ये चीज रहेगी। तो इसके लिए मैं फिर से रिपीट करने लगा हूं, डेमोलॉजी, DEMO, आपको पता ही है ये डेमो शब्द से निकले बना है, और साथ में लॉजी है। डेमो मीन पीपल होता है, लॉजी मीन साइंस होती है। इट मीन इट इज साइंस ऑफ पीपल, लोगों का ये विज्ञान है। और साइंस ऑफ पीपल में डेमोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। दोबारा से फिर रिपीट कर लिख लीजिए, इसको मन में बिठा लीजिए सही से। डेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। नंबर 2, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ये स्टडी ऑफ, इट लिमिटाइज अवर इटसेल्फ, लिमिटाइज करती है। ऑब्जेक्टिव जो है डेमोग्राफी का वो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेसेस है। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेसेस, रिपीटिंग अगेन, पॉपुलेशन प्रोसेसेस आपको पता ही है क्या होती हैं। इसमें फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और माइग्रेशन और उससे जुड़े हुए सारे मुद्दे इसमें आते हैं। नंबर 3, अति महत्वपूर्ण सोशल डेमोग्राफी, जिसको कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, इट स्टडी और एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें भला, रिलेशनशिप को एनालाइज करेगा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन को प्रभावित करती हैं। क्या क्या भला, कौन कौन से एस्पेक्ट पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं? नंबर 1 सोशल, सामाजिक, नंबर 2 कल्चरल, नंबर 3 बायोलॉजिकल। सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राणी शास्त्रीय जो भी एस्पेक्ट हैं जो पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, उसे हम सोशल डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। और ये इसमें 3 अति महत्वपूर्ण चीजें इसमें प्रभावित होती हैं या रादर आती हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें क्या है? नंबर 1 इनमोरेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गणना करना, ये सोशल डेमोग्राफी का काम है, नंबर 1। नंबर 2 इट स्टडी पॉपुलेशन फ्रॉम एम्पिरिकल, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। 3 पर्सपेक्टिव से
पॉपुलेशन की स्टडी करना। नंबर 1 एम्पिरिकल अनुभवों के आधार पे, नंबर 2 स्टैटिस्टिकल संख्या के आधार पे, और नंबर 3 मैथमेटिकल गणितीय आधार पे। इसका स्टडी करना 2 हो गया। नंबर 3 है स्टडी करना, क्या बोला, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहां क्या होगा, साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। अब साइज क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज आपको पता ही है कि एक स्थान विशेष में कितने रहने वाले लोग हैं, साइज कितना है पॉपुलेशन का, उसका अध्ययन। अब कंपोजिशन वाला जो दूसरा है, कंपोजिशन मीन एज वाइज, सेक्स वाइज, एजुकेशन वाइज, रिलीजन वाइज, हेल्थ वाइज जो है वो उसका कैसे अध्ययन, रादर कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, कैसे कंपोजिशन क्या है, उसकी संरचना क्या है पॉपुलेशन की, उसका अध्ययन करना। और अंत में जो इसमें एक और शब्द हमने यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन एज यू नो वेरी वेल कि कहीं थिकली पॉपुलेटेड है तो कहीं बिल्कुल ही दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम जिसको बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वितरण कैसे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। और उन सब का अध्ययन जो है, तीनों का अध्ययन हम सोशल डेमोग्राफी में करते हैं। तो ये बोल के जो तीनों, आप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। Yes, sir. सो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट वाले पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, 2 ऊपर वाले आपने भूल जाने हैं। अब ये तीनों पॉइंट आपको क्यों बताए गए, क्योंकि आप डिस्टिंक्शन कर सकें, अंतर आप कर सकें कि तीनों में क्या अंतर होता है। अब तीनों में अंतर के करने के बाद अब हम मात्र एक चीज पर ही ध्यान देंगे, देन दैट विल बी सोशल डेमोग्राफी ओनली। अब इसी के आधार पे हमारा स्कोप बनेगा। अब स्कोप वाइज देखें, स्कोप मैंने कहां तक जा सकते हैं हम, हमारा स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, हमारा विषय क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, और उस विषय क्षेत्र के अंदर जो है वो सब्जेक्ट मैटर आता है। स्कोप जो है वाइड होता है, सब्जेक्ट मैटर जो हम पढ़ते हैं या जो उसके अंदर आएगा। सो अब हम स्कोप की अगर बात करें तो डेमोग्राफी बीइंग साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की एक साइंटिफिक स्टडी होने के नाते इसका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है, क्योंकि अगर एक एस्पेक्ट को ही पकड़ेंगे तो उस एस्पेक्ट के कई और एस्पेक्ट जो है वो निकल आते हैं। परंतु उसको, हालांकि बहुत मुश्किल काम है कि इसको, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्फाइन this subject in some lines or in some pages or in some paragraphs, बहुत मुश्किल काम है। परंतु फिर भी यहाँ आप लोगों को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग इसके हैं। नंबर 1 को बोलते हैं मैक्रो डेमोग्राफी, और दूसरे को बोलते हैं माइक्रो डेमोग्राफी। मैक्रो MACRO मैक्रो, और सेकंड रहेगा आपका माइक्रो डेमोग्राफी। अब जो मैक्रो डेमोग्राफी है वो क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, और माइक्रो क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, दोनों फर्क लेंगे। और जो माइक्रो है, मैक्रो स्टडी माइक्रो इंक्लूड स्टडी ऑफ सिस्टम, कल्चर एंड सोसाइटी एट लार्ज। पॉपुलेशन की वजह से जो सिस्टम है, जो कल्चर है, और सोसाइटी लार्ज स्केल पर जो प्रभावित होते हैं, उनका अध्ययन मैक्रो में किया जाता है। मैक्रो में विस्तृत। और दूसरी माइक्रो है, माइक्रो में क्या होगा, इंडिविजुअल का अध्ययन, फैमिली का अध्ययन, एज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टडी, उसका माइक्रो लेवल पर, अति सूक्ष्म लेवल पर उसका अध्ययन जो वो किया जाएगा। जब अति सूक्ष्म लेवल पर उसका अध्ययन किया जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि हम माइक्रो लेवल पर आकर व्यक्तिगत लेवल पर एक पॉपुलेशन हमें कैसे प्रभावित करती है। जैसे पापा जो कमाते हैं घर में, जैसे एक दिन भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, एक घर में मान लो 10 बच्चे हैं, और एक घर में 5 बच्चे हैं, और एक घर में 2 बच्चे हैं। तो यहाँ माइक्रो एनालिसिस में हम देखेंगे कि जिस घर में 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, उन बच्चों को लाइफ अपॉर्चुनिटी
जो जीवन में जो अवसर मिले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन बच्चों को बहुत सारे ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो कि जिस घर में 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं उसके मुकाबले वो बेहतर होंगे। तो ये माइक्रो एनालिसिस रहेगा। तो ये दोनों के दोनों एनालिसिस जो है वो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे और इन दोनों एनालिसिस को हम जो है 8-9 पॉइंट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। 8-9 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे स्कोप के हिसाब से कि हम कहां तक जा सकते हैं। और इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन रहेगा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रहेगा जो ऊपर हमने बात की है, साइज रहेगा, कंपोजिशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, फर्टिलिटी रहेगी, मोर्टिलिटी रहेगी, माइग्रेशन रहेगा, लेबर फोर्स रहेगी, सोशियो कल्चरल इश्यूज रहेंगे और पॉपुलेशन पॉलिसी रहेगी। और यही टॉपिक जो है आगे चल के आपके चैप्टर्स में भी डिवाइड होंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने आपको ये बता दिया, कल से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में इसको लेंगे कि इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन 9 के 9 पॉइंट्स का क्या रहता है। कल हम इसको देखने की कोशिश करेंगे।